یہ دستار فضیلت حقیقت عنوان ہے، لیکن اس ضمن میں آپ کو زندگی گزارنے کے رہنما اصول دیے جا رہے ہیں۔ حضرت نے بہت قیمتی شعر پڑھا کہ کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو جائے دستار محبت میں۔ یہ اہل علم بالخصوص مطالعہ مدارس اور قارئین جامع العلوم سے درخواست ہے کہ اس رسمی تعلیمی تکمیل کے بعد آپ کسی اللہ والے سے تعلق کو ضرور جوڑیں۔ اور حضرت نے دوسری بات جو حفاظ کرام سے کہی ہے کہ وہ طلبہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، وہ مفتاح القرآن حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب نامی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 حصوں میں ہیں، اس کو کسی عالم سے سبقاً سبقاً اور درسن پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اب اس کے بعد چونکہ وقت بہت کم ہے، ہمارے پاس مشکل سے 2 گھنٹے ہیں، اور اس 2 گھنٹے کے اندر کئی بڑی شخصیات ہیں جن سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ اب انتہائی ادب کے ساتھ اس مدرسے کے شیخ الحدیث اور بے مثال مدرس اور تقریباً 40 سال سے زائد مدرسہ جامع العلوم کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، میری مراد حضرت مولانا محمد سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جو طویل عرصے سے بخاری شریف کا درس اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور بخاری شریف اول اور بخاری شریف ثانی، اور یہ جو فضلاء جن کے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے گی جن کی تعداد تقریباً 50 اور اس سے زائد ہے، یہ صرف حضرت مولانا سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، اور اس کے ساتھ عنوان ہوتا ہے اصل میں بخاری شریف کا جو اس کی عظمت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، ورنہ دورے کے جو ہمارے اساتذہ ہیں اس میں حضرت مولانا مفتی مشروق احمد صاحب مظاہری، حضرت مولانا مفتی معین الدین صاحب قاسمی اور حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب، یہ تمام بڑے اساتذہ ہیں، جامع علوم کی گویا کہ نمایاں کردار انجام دے رہے ہیں ان مدارس کے فضلاء کی تربیت سازی اور کردار سازی کے اندر۔ اب ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں حضرت مولانا سعید صاحب سے حضرت تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنی قیمتی مواعظ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین والطیبین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق۔ وقال اللہ تعالی انا نحن نزلنا القرآن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، عزیز طلباء اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، مستورات اگر سن رہی ہیں تو انتہائی پاک پاک مستورات، چند باتیں قرآن مقدس کی صحائف کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ امید کی غور سے سنیں گے اور عمل کے جذبے کی نیت سے سنیں گے، اس لیے کہ جو باتیں انسان بغیر عمل کے جذبے کی نیت سے سنتا ہے اور صرف ایسی مجالس و محافل میں اس نیت سے آتا ہے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیسا بیان کرتا ہے، کس کے اتار چڑھاؤ کیسے ہیں، اس کا بیٹھنا یہ بیکار ہوتا ہے۔ آپ نے عنوان میں 3 باتیں دیکھی ہیں، جیسے دستار بندی،
पहली चीज दस्तार बंदी क्या चीज है, दूसरी चीज आपने पढ़ी तकमील कुरान, और चौथी चीज तीसरी चीज आपने उसमें देखी खत्म बुखारी शरीफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको ये नेमत बख्शी। आज इन तीनों बातों के सिलसिले में थोड़ी थोड़ी बातें समाज फरमाएंगे और नियत करेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। तलबा से भी यही गुजारिश है, और सबसे पहले अपने नफ्स से हम अपने को खिताब करते हैं कि तुझे भी इस पर अमल करना है और इसके लिए तैयार होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब की जो आयत हमने तिलावत की, अल्लाह ने उसमें फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम अनक़रीब अपनी आयतों को, जो हमारी आयतें आफाक के अंदर हैं, जो हमारी आयतें अनफुस के अंदर हैं, वो लोगों को दिखाएंगे। और दिखाने का मकसद यह है कि इन आयात को देखकर, आफाकी आयतों को देखकर और अनफुसी आयतों को देखकर लोग हक को माने और पहचाने और हक को अपनाने की कोशिश करें। इसलिए कि जितनी आयात और निशानियां हैं आफाकी और अनफुसी, ये सारी आयतें इंसान की रहनुमाई के लिए हैं, इंसान की हिदायत के लिए हैं, इंसान के हक को मानने के लिए हैं। ये आयतें देखें, दलाइल देखें, उन दलाइल को देखकर इंसान हक बात को पहचाने। तो आप जितनी आयत कुरान पाक के अंदर है वो सभी आयत हैं, और कुरान से बाहर बहुत सी आयत हैं। इसी तरह कुरान मुक़द्दस की जितनी तफसीरें हैं, सबसे पहली उसकी तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, अहवाल, किरदार, ये आयत। कुरान करीम अगर मतन है तो उसकी शरह अहादीस नबविय्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के नाज़िल करने वाले हैं, उतारने वाले हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में आयत की तफसीर और तशरीह उम्मत के सामने पेश करने वाले हैं। लिहाजा कुरान क्या है? ये अल्लाह के कलाम, अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह की आयतें हैं। और हादीस क्या है? फरमाया उन्हीं अल्लाह के अहकाम की, उसी अल्लाह की कलाम की तौज़ीह और तशरीह, चाहे अमली तौर पर हो, लिसानी तौर पर हो, किसी अंदाज से हो, फरमाया उसका नाम हदीस है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बुखारी शरीफ के अंदर दूसरी जिल्द के अंदर मुस्तकिल एक बाब बांधे, मुस्तकिल एक किताब को उन्वान दिया है अल-इतिसाम बिल-किताब व सुन्नह, अल-इतिसाम बिल-किताब व सुन्नह, कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थामो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मजबूती से थामो। उसके तहत ढेरों हदीसें उन्होंने नकल की हैं अल-इतिसाम बिल-किताब व सुन्नह के तहत। मालूम कि यही दो चीजें असल हैं जो आप अपने पोस्टर में देख रहे हैं। किताबुल्लाह की तकमील, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबविय्या की किताब की तकमील और खत्म पर आपके सामने जलसा रखा गया। आपाकी आयतें क्या हैं? आलम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के हक़ानियत पर दलील न बनती हो।
जो भी पौधा जमीन से निकलता है, हर गया है कि जमीन हो वह लहू ला शरीक लग हो। जो भी पौधा जमीन से निकलता है वह लहू ला शरीक लहू ये आवाज देते हुए आता है। हजरत मौलाना अहमद साहब नवरल्लाह मरकज़हू प्रतापगढ़ी, जिनके हालात कभी मौलाना से समाप्त फरमा रहे थे, हजरत ने एक शेर फरमाया, गुलिस्तान में जाके हर एक फूल को देखा, तेरी ही सी रंगत, तेरी ही सी खूबत। मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, लेकिन फूलों में जो खुशबू आती है, उन फूलों के अंदर जो रंगत आती है, उस फूलों के अंदर जो रानाई और ज़ेबाई आती है, फरमाया कि अल्लाह की करिश्मा और अल्लाह की कुदरत की यह दलील है। किसी शायर ने गलत कहा था, हजरत ने उसके शेर की इस्लाह फरमाई। वो अपने मजाजी माशूक को ये कह रहा था, गुलिस्तान में जाके हर एक फूल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। ऐ मेरे माशूक, मैं बाग में जाकर, गुलिस्तान में जाकर, फूलबाग में जाकर हमने हर फूल को देखा, लेकिन तेरे जैसी चेहरा, तेरी जैसी मुस्कुराहट, तेरे जैसी खुशबू, तेरे जैसे रानाई और ज़ेबाई किसी की फूल के अंदर नहीं देखा। उस सारे फूलों से आला और बाला। ये मजाजी शायर ऐसे माशूक के बारे में कहा था जिसके अंदर 50 बुराइयां, खाता है, पीता है, पेशाब करता है, पखाना करता है, रेत आती है, बुखार आता है, मुस्लिम होता है, उसके बारे में कह रहा। क्या मैं जाके गुलिस्तान में देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी कुव्वत। हजरत के पास जब उसका शेर पहुंचा तो हजरत ने फरमाया कि शेर ऐसा नहीं है, गुलिस्तान में जाके हर एक फूल को देखा, तेरी ही सी रंगत तेरी ही सी कुव्वत। ये अल्लाह के लिए अल्लाह एक एक पंखड़ी की गवाही देती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत की, बड़ाई की, किबरियाई की। तो सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हर जानवर को आप देखें, अल्लाह ताला ने अजीम अंदाज से बनाया है, उसके अंदर अल्लाह की पहचान की निशानी है। किसी भी जानदार चीज को आप उठा के देखिए, गैर जानदार को देखिए, आफाक के अंदर आफाकी निशानी किसे कहते हैं? हमारे अजीज तलबा ध्यान दीजिए, आफाक कहते हैं जो इंसान के बाहर की अलामतें हैं। इंसान के बाहर की जो अलामतें अल्लाह ने अपनी पहचान के वास्ते रखी हैं, उसको आफाकी अलामतें कहते हैं, उसको आयात आफाकी कहते हैं। लाखों करोड़ों किस्म की निशानियां सनरीहिम आयातिना फिल आफाक, और अल्लाह फरमाते हैं वो अपनी अनफुसी आफाक, अनफुसी आयतें, वफी अनफुसी, उनके दिल के अंदर, उनके सीने के अंदर हम आयतें पेश करेंगे, दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ानियत ज़ाहिर। ये अनफुसी क्या चीज़ है? जो इंसान के सीने के अंदर होती है। इससे मालूम है कि दो किस्म के इल्म हैं, एक बाहर का इल्म और एक अंदर का इल्म। एक आफाकी इल्म कहलाएगा, एक अनफुसी इल्म कहलाएगा, एक अंदर का इल्म कहलाएगा, एक बाहर का इल्म कहलाएगा। अजीज तलबा, सामीन इज़ाम, दुनिया की जो निशानियां बाहर हैं, जो इल्म बाहर है, जो शक्लें सूरतें बाहर हैं, वो सब फना होने वाली है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज फना होगी, खत्म होगी। बाहर की जितनी चीजें आपको नजर आए, जैसे भी नजर आए, अल्लाह की वहदानियत की दलील है, लेकिन इसके अंदर टिकाव नहीं है, जमाव नहीं है, ये रहेंगे नहीं, ये एक दिन मिटेंगे। हमारे सामने कितने लोग आए, बड़े बड़े उलमा आए, बेचारे गए। इस मदरसे के बानी वो भी दुनिया से गए,
मदरसे के सबसे पहले मोहतमिम वो भी दुनिया से गए। कितने बड़े बड़े लोग हैं थाने जिन्होंने इसको काम किया एक तरह से, वो भी गए दुनिया से। तो बाहर की जितनी चीजें हैं जिसे आप कहते हैं ये सारी खत्म होने वाली है। उसी बाहर की चीजों में इल्म भी है। जो बाहरी इल्म है वो सारा बाहरी इल्म तबाह बर्बाद होने वाला है। उस बाहरी इल्म की अल्लाह के कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज फना होगी, जो चीज खत्म होगी, जो चीज रहेगी नहीं, उसकी क्या वैल्यू है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को कहा कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब आप लोगों से कह दिया दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब के सब कलील। तो कलील अगर किसी को कोई चीज हासिल हो जाए, मुख्तसर चीज हासिल हो जाए, उस पर वो इंसान गुरूर करने लगे, घमंड करने लगे, तकब्बुर करने लगे, वो इंसान बेवकूफ। बाहर के जितने इल्म है वो सारे इल्म उसी कलील में दाखिल है। जब दुनिया ही कलील है तो दुनिया के सारे उलूम कलील है। आज हम नहीं इसको समझ पाते। दुनिया के उलूम को आज दुनिया के लोग सबसे आला बाला समझते हैं। अल्लाह फरमाता है आला बाला नहीं है, ये कलील है। दुनिया कलील है तो दुनिया में पढ़े और पढ़ाए जाने वाला दुनियावी लाइन की जो इल्म है ये भी कलील। और इसका ताल्लुक सिर्फ जाहिर से। जाहिर से क्यों है कि दुनियावी जितने उलूम आप हासिल करते हैं उस उलूम के फवायद सिर्फ जाहिर को हासिल होते हैं। उस इल्म का फायदा इंसान के जिस्म को हासिल होता है। अच्छा खाएगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा मकान बनाएगा, अच्छी सवारी रखेगा, अच्छे अंदाज से वो जिएगा। ये सब के सब कलील के दाखिल हैं। कितने दिन अच्छा खाएगा, कितने दिन अच्छा पिएगा, कितने दिन अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करेगा, कितने दिन वो जिएगा, कितने दिन लोगों पर तफव्वुर को बर्तरी हासिल करेगा। एक दिन तो उसको दैनिक होना है, जाना है यहाँ से। मालूम हुआ कि लोग दुनियावी उलूम को सबसे आला बाला समझते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कुल मताउ दुनिया कलील। दुनिया की जितनी चीजें हैं ये सब कलील है, खत्म होने वाली है। अगर किसी को एक मुट्ठी जौ मिल जाए, घर में सबसे बड़ा किसान हूं, 10 रुपये के नोट मिल जाए, कहे सबसे बड़ा मैं मालदार हूं, एक टूटी चप्पल मिल जाए, कहे सबसे बड़ा मेरे पास चप्पल, बड़ी चप्पल है, सबसे बड़ा मैं इंसान हूं। मेरे भाई वो इंसान बेवकूफ है। वो जानता नहीं है कि ये आज है कल पुरानी हो जाएगी, नहीं जानता 10 रुपये के नोट की आज के दौर में कोई वैल्यू नहीं है। फकीर भी फेंक देता है, कोई वैल्यू नहीं, और अपने को मालदार समझता है। ये सारी दुनिया अल्लाह की निगाह में लौकान की दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा। अगर पूरी दुनिया की कीमत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर होती, फरमाया मा सक़ा काफ़िरा, अल्लाह किसी काफिर को एक घोट पानी नहीं पीने देगा। अल्लाह के रसूल ने अपने हदीस में फरमाया, अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया। बाहर की जितनी चीजें हैं, चाहे बाहर के इल्म है, आज कोई डॉक्टर बन जाता है तो इंसान समझता है, लोग मुबारकबाद पेश करते हैं, साहब ये बहुत बड़ा आदमी बन गया, ये डॉक्टर बन गया, इसने इंजीनियरिंग में बेहतरीन नंबर हासिल किए, इंजीनियर बन गया, ये साइंसदान बन गया, ये टेक्नोलॉजी के माहिर बन गया। लोग समझते हैं कि बहुत सालों उसने इल्म हासिल किया। अल्लाह फरमाते हैं कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन एक अंदर इल्म है जिसको अनफुस कहते हैं। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। तुम्हारे नफ्स के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे सीने के अंदर हम हजारों आयतें डालेंगे, हजारों
کر تم حق کو پہچان، حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ محترم حضرات، عزیز طلباء، اندر کی دنیا کیا ہے؟ ہمارے اسلاف اندر کی دنیا کو جو واقف ہے، جو ماہر ہے، جو اس کے ڈاکٹر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اندر کون سی دنیا آباد ہے تو ہمارے خلاف جنگ چھیڑ اس نعمت کو تم ہی حاصل کرو گے، تم ہی لے کے پھرو گے، ہم اس نعمت سے فائدہ نہیں حاصل کریں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اندر والی نعمت ہوتی کیا ہے، اندر والا علم ہوتا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے قرآن مقدس کے اندر فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات جس کو اللہ نے فی الآفاق و فی انفسہم آیات دکھانے کے لیے کہا، صحیح آیات اللہ نے فرمایا یہ صحیح آیت اہل علم کے سینوں کے اندر ہوتی ہے۔ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں وہ آیتیں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ علامتیں ہوتی ہیں، وہ گدگد ہوتے ہیں نشانیوں کو دیکھ کر، وہ مارے خوشی کے اچھل پڑتے ہیں جب وہ نشانیاں اندرون قلب ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ نشانیاں ایسے نہیں ہیں 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، 60-70 سال کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں تیسری جگہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اگر وہ نشانیاں آپ دیکھ لیں میرے محبوب تو بہت بڑی بادشاہت آپ دیکھیں گے، بہت زیادہ نعمتیں دیکھیں گے اگر اس کو آپ دیکھیں جو سینے کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی اصل علم وہ ہے جو سینے میں ہے۔ یہ اصل علم ہے کس چیز کا علم؟ کون سا علم سینے کے اندر بسانے کی چیز ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تیسری آیت میں 4تھی آیت میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ درجات بے شمار بلند کرتے ہیں ایمان والوں کے، درجات بلند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے، علماء کے، صلحاء کے، طلباء کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات، درجہ نہیں کا درجات کا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں کے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا، کون سا علم دیا گیا؟ وہی بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور علم کے سینے میں جو علم اللہ عطا فرماتے ہیں اس علم کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کے بے شمار مراتب بلند فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کو سمجھ میں آئی قرآن کی روشنی میں کون سا علم ضروری ہے؟ کس علم کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، کس علم کا فائدہ قبر میں بھی ہے، کس علم کا فائدہ محشر میں بھی ہے، کس علم کا فائدہ جنت میں بھی ہے۔ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کیا ایک ڈاکٹر کے علم کا فائدہ قبر کے اندر ہے، محشر کے اندر ہے؟ کسی کی وہ سفارش اس دیش پر بھی ایک بڑا ڈاکٹر ہے، اللہ کہیں آئی حضرت آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر تھے، آپ کی فیس 1 لاکھ روپیہ تھی، آئی ان کی سفارش کرتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر وہ ڈاکٹر نہیں بچ گئے تو بہت مشکل ہے۔ یہ ہر جگہ کام دینے والے علم ہے۔ بھائی یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، یہ قرآن حدیث کا علم ہے، یہ ضروری ہے کیونکہ یہاں بھی کام، قبر میں بھی کام، معیشت میں بھی کام، اور ہمیں اس سے ضرورت پڑے گی۔ اس کو اگر کسی نے نہیں حاصل کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھر ویران ہے، وہ گھر ویران ہے جس کا دل قرآن کی آیات سے خالی ہے۔ گویا کہ ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا سینہ ایک گھر کے مانند ہے، جس طرح ویرانے گھر کے اندر بھوت
भूत प्रेत आके जगह पकड़ लेते हैं। ऐसे ही कुरान हदीस से जिसका सीना वीराना हो, उसके सीने में कुरान और हदीस हो, ऐसे इंसान पर शैतान कब्जा कर लेता है। फिर वो चाहने के बावजूद नेकियां नहीं करता, क्योंकि वीराने घर के अंदर शयातीन अपना अड्डा बना लेते हैं। वीराने दिल के अंदर जिसमें कुरान हदीस ना हो, ऐसे दिल पर शयातीन कब्जा कर लेते हैं। आप कितने ऐसे हमारे बच्चे हैं, कितने हमारी बच्चियां हैं, उनका दिल अगर वीरान रहता है, लाख न करे, बाप मना करे, घर की सरपरस्त मना करे, लेकिन वीराना दिल है, उस वीराने दिल में शैतानी के काम अच्छा लगता है। वीराने दिल के अंदर शैतानी काम ही अच्छे लगते हैं। इसलिए एक दो तरीके, एक बाहर का इल्म, एक अंदर का इल्म। मेरे भाई, अंदर का इल्म ये कुरान है, ये हदीस है। ये हमारे तलबा जो आज दस्तार के लिए तैयार हैं, आपको मालूम है कि दस्तार ये जिम्मेदारी सर पर रखी जा रही है। अपना दिल वीराना मत करना इससे। बुखारी पढ़ने के बावजूद, कुरान पाक याद करने के बावजूद, अगर तुमने कुरान हदीस से अपने दिल को वीरान कर दिया, तो याद रखो उन जाहिलों को उतना सजा नहीं दी जाएगी जितना सजा तुम्हें दी जाएगी। अशद्दुन्ना से अज़ाबन यौमल क़ियामा अल-आलिम लम यंतक़िल इल्म। क़यामत के दिन बदतरीन आलिम अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा, जिसने अपने इल्म से न खुद फायदा उठाया न दूसरों को फायदा पहुंचाया। इसलिए ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि हमने ये अमानत आज तक अपने पास रखी थी, आपको बताते रहे, समझाते रहे। आज ये अमानत हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके सर पर रख रहे हैं। इस अमानत का लिहाज रखिए। और अल्लाह ताला ने इसी अमानत के बारे में फरमाया, वही इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहा अल-इंसान। किसी जानवर के सर पर दस्तार नहीं बांधी गई है, किसी दरख्त के सर पर दस्तार आज तक नहीं बांधी गई, कि आपके सर पर बांधी जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हदीस पाक आपने सुन लिया कितनी शदीद मजम्मत की गई इस हदीस पाक के अंदर। इसलिए अकाबिरीन मौजूद हैं, मसूद बिजात उनके वाज बयान सुनना और उनके फवायद से इस्तेफादा करना है। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस मदरसे के अंदर रहकर तकमील कुरान भी किया और तकमील बुखारी भी आपने किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म में बरकत नसीब फरमाए। ये मदरसा जैसा कभी तारुफ आप सुन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िर भाई से नाज़िर तालीमात के लिए आपको बता दे रहे हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अरबी दर्जात में भी, फारसी में भी, इसी तरह हिंद में भी, नाज़रा में भी और इसी तरह शाहीन ग्रुप चलता है उसमें भी कुल मिलाकर 500 से तकरीबन ज़ायद बच्चे हैं जो इस उलूम के हासिल करने में लगे हुए हैं। अल्लाह सबको दर्जात और सबके इल्म के मुताबिक और सबके मेहनत के मुताबिक अल्लाह उनको इल्म नाफ़े अता फरमाए। और जो हज़रात इसके मुंतज़िम हैं, देखभाल करते हैं, ख़ास तौर से हमारे इस जैसे के सरपरस्त मदरसे के मोहतमिम हज़रत अलहाज मुहीद्दीन खुसरू साहब, अल्लाह ताला की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, इखलास के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे साले की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब